the tragic self-immolation for 20-year-old college student in Balasore has ignited statewide demonstrations and opened a Pandora box of alleged abuse within Odisha's higher education system. Now viewers, it is expected to disrupt public transport and daily services, especially in Balasore and nearby districts. And protesters are likely to hold marches and sit-ins across major towns to demand systemic reform and accountability. Here, 8 opposition parties led by the Congress have called for a statewide Odisha Bandh today. They are demanding justice for the college student from Balasore who died after setting herself on fire. Now, the student's self-immolation followed alleged inaction on her sexual harassment complaint, and this was against a professor at Fakir Mohan Autonomous College. Now viewers, the real shock lies buried in 3 explosive letters. They were written by students, letters that point to a sustained pattern of harassment, intimidation and administrative silence at Fakir Mohan Autonomous College in Balasore. Let's walk you through these crucial letters that have now come up. First letter dated 2nd July 2025. This was addressed to the college president through the head of the training center. And it says, and I quote, "You will not get into a good college, I'll give you a D grade." It also says, "I'll make your 4-year course stretch to about 6 years. It further goes, "I'll see each one of you in your semester papers." Now these are just some of the verbal threats allegedly made by Dr. Samina Sahu, the head of Department of Teacher Education. And this is according to students of the college. Now, the letter accuses Dr. Sahu of constant mental harassment, using grades often as a weapon against dissenting students of the college. It notes that multiple written complaints were submitted to both the principal and the grievance committee, but none of which yielded any action. As a result, students say they were deliberately given D or C grades, impacting their future academic prospects. Now comes the second letter, viewers. It was dated June 30th, 2025. It comes from the local unit of ABVP and is addressed to the principal of the college. Now the ABVP in the letter accuses HOD of mental harassment, unfair academic treatment and biased grading, all of which allegedly caused serious distress among the students. The letter in fact calls for the formation of a disciplinary committee and also urges immediate action against the faculty member. And finally comes the third letter. It is a handwritten personal complaint written by a second-year integrated B.Ed student addressed to the internal committee of the college. In painful detail, the student describes being harassed by Samina Sahu, including instances of class intimidation, misuse of academic power and dragging personal matters into academic evaluations. Viewers, the student writes, "I have already submitted complaints to the principal and other authorities, but no steps have been taken. And this is not an isolated issue, but a recurring pattern of abuse that is being ignored." This was a line from that complaint. She ends by stating that the ongoing abuse has caused immense psychological trauma and also pleads with the committee to take action against Sahu. Now viewers, these letters, all written weeks before the student's self-immolation, have become the centerpiece of public outrage. Because had there any action been taken, we could have prevented what took place at the college. The drastic step the student had to take after inaction by authorities in the case. इन लोगों ने सब लोग मिल के मेरे बेटी को मरने के लिए फोर्स किया। वो क्या मर्डर नहीं है? मुझे तो लगता है कि ये एक साजिश है इन लोगों को। वो आवाज़ उठाता था कॉलेज में, इधर अन्याय होता था, गलती होता था, इसके बारे में कहता था, इसलिए इन लोगों को पसंद नहीं आया। सोचे समझे करके एक एक मिलके बाद में सब लोग मिलके मेरे बेटी को फोर्स किया, अटेम्प्ट टू सुसाइड करने के लिए उन लोगों ने मुझे फोर्स किया। आप बताइए, प्रिंसिपल के रूम से निकल के वो सुसाइड अटेम्प्ट रहता है, क्यों? कुछ तो होगा अंदर। क्या हुआ अंदर? क्यों अकेले बुलाया गया? मुझे कि मैं इनका गार्डियन हूँ, पिता हूँ,
मेरा बेटा इधर ही बालेश्वर में रहता है, 2 मिनट 3 मिनट लगेगा जिधर रहता है वो। दोनों का फ़ोन नंबर प्रिंसिपल के पास है, मुझे तो बताएगा। जब आप लोगों ने लेटर दिया और लिखित में जाहिर किया कि क्या क्या घटना हुई है, उसके बाद कोई एक्शन लिया गया था? हाँ, एक्शन लिया गया था। मतलब जिस दिन हम लोग दिए थे वो लेटर लिख के जो दिए थे हम प्रिंसिपल को, उसके अगले दिन वो जो एचओडी है वो स्टूडेंट उनके पास साइन करके कुछ 60-70 स्टूडेंट्स का साइन लेके एक एप्लीकेशन सबमिट किए थे प्रिंसिपल को। तो भी कल भी आए थे उनके दोस्त सब माफी मांगने के लिए कि हम लोग को पता नहीं कि ये सब हो रहा है। हम साइन किए थे सिर्फ माफी मांगने। तो ये कुछ चल रहा है और जो कमिटी रिप्रेजेंटेशन किया तो कुछ नहीं था, किया गया था। तो कमेटी भी ज्यादा बात नहीं डाली, सिर्फ उनका कॉलीग है उनको ये सभी साजिश चल रहा था उधर। और इस समय फैमिली की क्या डिमांड्स हैं जब ये सब हो चुका है? देखिए, फैमिली की तो डिमांड सिर्फ उसको कैसे भी करके जो विक्टिम लोग है, इसका पीछे किसका भी जिन जिन लेक्चरर, जिन जिन एचओडी, जिन जिन जो डिपार्टमेंट रखते हैं, उन्होंने ट्रू इन्वेस्टिगेशन और लेक्चर चल गए, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और जैसे ऐसे सजा मिले कि कोई भी भारतवर्ष में कोई भी भाई उसका बहन का, कोई भी बाप, कोई भी माँ उसको बेटी को ना खोए। इसे यही डिमांड है हमारा। ये तो एक वो तो चली गई, उसमें क्या, वो तो चली गई, वो तो हम लोगों को छोड़ के चली गई, क्या कर सकते हो। नहीं, आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा इस समय हमसे शेयर करना, बट अगर आप हमें बता सकें कि आपकी बहन से जब आपकी बात हुई थी तो आपको क्या लग रहा था? इतना सब कुछ होने के बाद क्या वो बिल्कुल टूट गई थी कि उन्होंने ये स्टेप लिया? जो घटना घटी उससे 1 घंटा पहले मेरे साथ बात हुआ था। वो बोला मैं कॉलेज जा रहा हूँ। मैं बोला ठीक है, कॉलेज में क्या करेगा जाके तू, हम ऐसे आज कॉलेज में स्ट्राइक करने वाले हैं, कॉलेज में स्ट्राइक करूंगा जाके। हाँ जी। कौन कौन है? दोस्त लोग सब है, जाके स्ट्राइक करेंगे। क्या क्या उधर जाके क्या क्या करोगे ना? मैं जाऊंगा प्रिंसिपल के ऑफिस के पास, प्रिंसिपल को बताऊंगा क्या क्या इन्वेस्टिगेशन क्या है, उनका रिपोर्ट क्या है। तो फिर वो प्रिंसिपल और एचओडी ऑफिस के अंदर ही वो बैठा। उनको उनके साथ मेरे बेटे बहन के साथ 2 दोस्त भी गए थे। उन लोगों को आउटसाइड खड़ा किया, सिक्योरिटी जाके आके पता है उनको, पता नहीं मेरे को, तो निकल के आके ये घटना हो गया। अच्छा, और आप कभी प्रिंसिपल से मिले थे जिन्होंने इस सिचुएशन में कोई स्टेप नहीं लिया? क्या आपकी कोई बातचीत हुई थी उनसे इस बारे में, एचओडी के बारे में? नहीं, मैं तो नहीं गया था, लेकिन पापा ने गए थे। पापा जाके उधर एक रिटन स्टेटमेंट भी दिए थे, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उन्होंने पेश की है वो पापा का स्टेटमेंट नहीं पढ़े। वो पापा स्टेटमेंट में कुछ अलग लिखे हैं, उधर कुछ अलग लिखे है। वो स्टेटमेंट में लिखे है आपके फादर ने ऐसा स्टेटमेंट में क्या लिखा था जो रिपोर्ट में नहीं आया है अभी तक? वो जब लिखे थे सब, जो मैं ऐसे ऐसे बात करता था, मेरा बेटी ऐसे रोती थी, सब कुछ लिखे थे, लेकिन उधर कुछ भी मेंशन नहीं था। तो इस समय जो आपकी बहन को आश्वासन देते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब अगर आप बता सकें कि उनको क्या कहना था। तो फाइटर गर्ल था, वो को समझा था, क्योंकि इस समय हम आप ही के थ्रू जान सकते हैं कि वो क्या कहना चाहती थी। तो वो कोई भी डिप्रेस को समझाता था, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, ऐसे कुछ नहीं करना है, ये सब करता था। वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव गर्ल है। तो हम घर में भी उन्होंने सबको समझाता था, ये कुछ नहीं करना है, ये करना है, वो करना है। मेरे से 10 साल छोटी है, लेकिन वो मेरे को भी सलाह देता था कि भैया
ये करना है वो करना है, का वो था जिन पर जो क्या आया, क्या कौन क्या हुआ, तो मेरे को तो सीसीटीवी में तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। मेरे को तो डाउट हो रहा है जो आपने खुद के ऊपर खुद लगाने के बजाय नहीं था, कोई और दूसरा लगा दिया है, मेरे को लग रहा है। प्रिंसिपल का ऑफिस के सामने था ना। हाँ जी। ये मेरे को लग रहा है कि ये प्री मर्डर है, प्री प्लान मर्डर है। मैं तो कभी भी नहीं बताऊंगा कि वो सुसाइड है, क्योंकि इतना ब्रेव गर्ल कभी सुसाइड नहीं कर सकता, जो सबको समझाता था।